We are live now. Sat Sri Akal, Saranu, and good morning, good afternoon, good evening, wherever in the world you're watching us from. It's a beautiful Sunday morning, March 22nd today, and we are live. आज ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ Rita Nair from Alberta, Canada. ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हाँ जी, थैंक यू गुरप्रीत फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सभी को नमस्कार। आज हमारा जो लाइव है ये हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश सब मिक्स चलेगा बिकॉज रीटा नो हिंदी ऑल्सो एंड इंग्लिश is her language too. So I was just thinking कि हम दोनों लैंग्वेज यूज करें ताकि सभी को समझ आ जाए। तो my name is Paramjeet from Toronto, Canada, living here from last 15 years now, and former nurse and full-time digital business owner. We started this coffee and chat with mompreneurs from few weeks now, and we are planning to answer all your questions. जो भी आप क्वेश्चन हमें भेजते हैं हम उन्हीं को आगे आंसर करना चाहते हैं, जो भी आपके डाउट होते हैं उनको आंसर करना चाहते हैं. So let's welcome our coach Rita from Alberta, Canada, and let's hear from her about her journey and we'll ask more questions to her. Welcome Rita on the floor, and can you start with your introduction and why, please? Thank you so much, Paramjeet and Gurpreet, for inviting me. I always like connecting with people. अच्छा लगता है, अपने जो business owners है उनसे connect करना. And even though like हम लोग online we work, but these kind of sessions, it's educational, inspirational, and it gives us an opportunity to connect with people. So my name is Rita Nair. Originally, my ancestors वो Kerala, India से है, but I was born and raised in Fiji Islands. और इधर कनाडा में काफी साल हो गए, 15 plus years हो गए. I moved here शादी के बाद, of course. and हाँ, काफी साल मैंने काम किया है. I belong to the hospitality industry. So almost 19 years plus रख लो मैंने काम किया है. और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया है ऑलमोस्ट 5+ years इसमें भी हो गया, तो काफी टाइम से चल रहा है. And why I joined is, I'll be honest, शुरू में तो it was more for extra income, एक additional income source चाहिए था, immigrant life. Just one job wasn't working out. और ऐसा भी नहीं था कि I can go and do second job, पर husband का था, he was doing 2 jobs. At one time he was doing 3 jobs because हमारा एक goal था ना कि like go ahead in life, we move up abroad, अच्छे opportunities के लिए, and for that you have to sacrifice ना. तो हमारा thinking उस time, I think काफी people का thinking रहता है कि आप जितना ज़्यादा काम करते हो अपनी जॉब पर या 1 या 2 जॉब कर लो तो उससे आप लाइफ में अहेड जाओगे. ऐसा नहीं होता कि नहीं होगा, यू गो अहेड इन लाइफ, पर व्हाट्स द कॉस्ट? अपना सारा टाइम चला जाता है ना वर्किंग, एंड देन फिर आपको लगता है कि एक दिन आप जॉब पर नहीं जाओ या आप बीमार हो जाओ, समथिंग हैपेंस, फिर वेकेशन का टाइम आता है, यू हैव टू थिंक अ लॉट, बिकॉज यू आर डिपेंडिंग ऑन जॉब्स ओनली. तो इसीलिए वी नीडेड एक्स्ट्रा इनकम. तो मुझे लगा कि बिकॉज फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई कांट गो डू लॉन्ग आवर्स. तो आई थॉट let's try the online space. तो बिजनेस तो मैं बिल्कुल भी नहीं खोज रही थी. लाइक आई wasn't looking for business. मुझे सिर्फ कुछ एक ऐसा चाहिए था जो फ्लेक्सिबल है और अपने जॉब के साथ साथ आई could build.
and that's how I found about this. ऐसे ही कोई किसी ने अपना इंटरव्यू शेयर किया हुआ था, and I was watching, listening, and मैंने बोला क्या है ये, क्या कर रहे हैं लोग, you know. So I joined, and I'll be honest, easy नहीं था. I think we'll talk about all that. You guys might have questions, you know. पर मेरा रीज़न यही था कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए अभी तो मैं फुल टाइम कर रही हूँ, क्योंकि उस बीच में मेरा जॉब भी, I lost my job in the process, you know. New management, pay cut, layoffs, everything, I went through that. फिर almost 19-20 years corporate में काम करने के बाद लगा कि नहीं, you know, it's time to build something of my own. And that's when I really took this business seriously, because potential तो देखा था मैंने, पर it was just a side hustle, extra income. कभी full time का नहीं सोचा था, but after losing the job and I saw the potential, I'm like, you know, instead of going back to another job, let me put everything I have in building this. So now it's been almost 3 years that I do this full time. So yeah, that's a little bit about me. थैंक यू, दैट वाज अमेजिंग। मतलब जब हम एक दूसरे की बात सुनते हैं ना तो थोड़ा कनेक्शन भी आता है। जैसे आपने कहा आपने जॉब लूज करी तो मैंने भी जॉब लूज करी, बट मेरा रीजन था कि मैंने अपने हेल्थ इश्यूज के कारण मैं नहीं जा पा रही थी। सो देयर आर मैनी पीपल अराउंड जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हैं बट दे आर स्टिल गोइंग एंड यू नो पूरी हालत में है, बट स्टिल वो एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि उनको डर लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी जब हमें देखते हैं। तो जब आपने ये बिजनेस देखा तो आपको वर्क सिचुएशन आपने बता दी कि आपकी क्या थी, एंड देन यू नो स्विच इट, यू स्टार्टेड एज ए साइड हसल बट आप फुल टाइम कर रहे हैं। तो शुरू में क्या डाउट्स या फियर थे आपके बिजनेस शुरू करने के लिए, और उसको कैसे आपने ओवरकम किया, ये पूछना है मुझे। I think सही सवाल पूछा आपने, because आप सबको लगता है ना, I'm sure आप लोग को भी लगा होगा कि you know कि कैसे होगा किसी भी, you know, at any given point, you know, शायद ट्रेनिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलता हो लोगों को, या आपको लगता है कि ओ सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, बात करना होगा, प्रमोशन करना होगा, कैसे होगा। तो मेरा भी सिमिलर चैलेंज था कि मैं आई थिंक माय बिगेस्ट फियर वाज कि मार्केटिंग पार्ट, यू नो, लाइक बिजनेस का जो बिजनेस मॉडल है उसको मैंने स्टडी किया, अंडरस्टैंड किया, पोटेंशियल है सब कुछ। इनकम वाइज वो भी मुझे लगा कि अच्छा अपना खुद का बिजनेस है, जितना यू नो कोई कैप लिमिट नहीं है कि इतना इनकम से ज़्यादा आप नहीं बना सकोगे, तो सब चीज़ मेरे लिए was okay. What I struggled the most was marketing part, because मैंने एक तो किया नहीं पहले कभी ऐसा कुछ, you know, सब कुछ नया नया था, ट्रेनिंग भी अच्छा था, सपोर्ट भी अच्छा था, पर एक वो होता है ना कि क्या मैं कर सकती हूँ, लाइक कैन आई डू दिस, होगा नहीं मुझसे। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब you know I had to record my first video, it took me 51 times to record it, because मेरे को लगता था कि एक ओ मैं अच्छी नहीं दिखती इसमें, मैंने अच्छे से सब कुछ सारा कुछ, you know, I wasn't able to put it out there in that video. My voice was shaking, I didn't sound confident, but out of frustration, like after that 51 times, it took me 6 hours in then that whole trial. But after that, I just put the video as it is. You know, I just talked about I was scared and I didn't know how this gonna go and everything. But the support I got from people who watched that video was like, you did way better than I did. Keep it going, you know. So that was the challenge. Like I was scared. कभी नहीं किया था, डर लगता था। एक तो वो है ना कि people judge करेंगे, what they gonna say and all that. पर फिर एक वो भी था कि business है, you need customers, you know, that's how business work.
no customer, no return, no money, right? तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन था. पहला तो what the training says कि use the social media marketing strategy, because यहाँ पे you can attract more people and people who's actually interested, ना जो आप ऑफर कर रहे हो, they are interested in that. Yeah. या दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि खुद ही लोगों के पास जाओ and explain करो one by one and face the rejection. तो मैंने वो भी मुझसे नहीं होगा. आई कांट अप्रोच पीपल. तो मैंने सोशल मीडिया का चूज किया and then I worked very hard. I struggled, I failed, I was scared, but I had to come out of that phase. And it took me 1 year. I'll be honest. It took me 1 year to come out of that phase. But आज over 5 years, I'm doing this full time and I'm here. तो थोड़ा बहुत माइंडसेट आपका चेंज होना चाहिए एंड आई वर्कड ऑन इट. और दूसरा है कि हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, इट्स अ वेरी नाइस कम्युनिटी. तो I started the person who introduced me into this business. She was a African lady. तो ऐसा भी नहीं था कि she didn't support. She supported me. पर वो होता है ना एक like अपनापन बोलते हैं जिसको, like जहाँ पे people can talk in your language. वो connection नहीं मिल रहा था. तो मैंने I switched to our online business community. जो लोगों को who I could relate with, I connected with them. उनसे बात किया, उनसे पूछा कि आप लोग कैसे कर लेते हो, कुछ आइडियाज दो मेरे को भी ना. And they guided me. So ऐसा भी नहीं है कि जिसको आप नहीं जानते they won't step up to help ना. तो ऐसे कर करके I'm here. So basically डर था. I wasn't perfect. Mistakes बहुत किया मैंने, पर give up नहीं किया. Yeah. So that was my biggest challenge. Yeah, that is a great explanation. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं, जो कहते हैं पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा. मेरी वही सिचुएशन थी. तो मैंने जब मेरे को बोला गया कि वो वीडियोस डालो तो लोग कनेक्ट होते, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर देते हैं. बट वही बात आ जाती कि बनाना और फिर लगना कि हाय मेरा फेस इधर ठीक नहीं आ रहा, उधर ठीक नहीं आ रहा, इधर धूप आ गई, ये हो गया. कर करा के मैंने ना एक दिन हमारी जो एजुकेशन पार्ट है मास्टरमाइंड, वो देखा मैंने, जहाँ पे आके लोग अपनी शेयर करते हैं नॉलेज. तो somebody said कि करेक्शन पे मत जाओ, उसको करेक्ट करने में तुम टाइम वेस्ट मत करो, तुम अपनी ना क्वांटिटी छोड़ो, क्वालिटी छोड़ो, क्वांटिटी पे लग जाओ, जो होता है कर दो. क्या पता कैसे कितने लोग हैं जो तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं कि उनको भी लगता है कि यार इससे ये नहीं हुआ, मेरे से भी नहीं होगा शायद, चलो कोई बात नहीं, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ. तो गुरप्रीत, आप कुछ कहना चाहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन of course, but I just wanted to comment on what Rita just said. It's the consistency. You did not give up after all those challenges and everything. You didn't give up. So look at now, after 5 years, you're a coach. You are one of the top leaders in the business. So this is amazing. It's such an inspiring story. So thank you very much for sharing your experiences, right? The biggest thing is कि हर किसी को challenges आते हैं. Even कि traditional business में हम सबको पता है कि traditional businesses में it's not a challenges free business. Nothing is challenge free, right? Even job में जाओ आप, तभी आपको कई चीजों की difficulties होती हैं. And same with this business. But because of that supportive community that you just mentioned, there's so much support, so much encouragement that it's much easier to get through those challenges in this community. So thank you very much for sharing your experiences. So the next question, jo hai, I was thinking about what were your doubts, and I mean you mentioned all your doubts and fears It's done and all already. of that. Yeah. The challenges you faced was also covered. But what was the first step you took when you initially started this business after meeting that person who introduced you to this business, and how did you take those further steps into the business? I will address doubt का भी था मेरे को कि सिस्टम काम करेगा कि नहीं, is it legit कि नहीं, वो था मेरे में था. पर
I think मैं desperate नहीं थी, पर I was interested, you know, कि कुछ करना है तो करना ही है. तो वो डाउट रियल सिस्टम है कि नहीं, स्कैम तो नहीं निकल जाएगा, क्या वर्क होगा कि नहीं, अच्छा दूसरे का काम आ गया मेरे साथ, is it gonna work with me कि नहीं. But I think I was so interested that I ignored my doubts and fears. चलो एक रिस्क लेके देखते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं तो कुछ नया सीखने को मिलेगा. That is how I moved forward. But getting back to your question, Gurpreet, कि what were the steps I took और कैसे मैंने move forward किया. तो जब मैंने भी I watched online, किसी ने she was, like I said, she was originally from Africa, but she was settled in Canada. Abhi to she moved to USA. But what she shared with me that I connected with was her immigrant struggle. तो मैं खुद भी immigrant थी, और she was saying how she came from this background, and the struggle she went through, and husband working multiple jobs and things like that. तो वो चीज मेरे से connect हो गया कि मेरा भी situation same है, चलो देखते हैं. And website se register hoke I started that free information part and paid the registration. But what changed for me was booking that coaching call, that strategy call jo bolte hai hum na, when we pay the registration. So I studied everything that was given to me. I took the time to learn. That was the biggest thing I did. Like, I took the time to learn, watched all the videos, studied everything. And then the best thing is we put people inside our community group na, jahan pe when people pay registration, we put them there. So I started looking at people, reading their stories, the videos wahan pe tha, to wo bhi maine dekha, testimonials and everything. Then फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये तो करना पड़ेगा. If people are getting results, मेरे को जानना है कैसे, कौन सा स्ट्रेटेजी उन्होंने यूज किया है, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया है. तो उस टाइम आई बुक्ड माय कोचिंग कॉल. That call was for 1 hour. Usually it's 30 minutes, but my coach was good enough to give me 1 hour of her time. And she explained everything to me. वैसे समझ तो आ गया था मेरे को, पर कुछ क्वेश्चंस था जो पर्सनल लेवल पे मुझे जानना था. जैसे कि अच्छा, आपको कितने टाइम में रिजल्ट मिला व्हेन यू स्टार्टेड द बिजनेस, आपका क्या चैलेंज था, इस बिजनेस में लोगों का सक्सेस रेट क्या है, वो सब मेरे को पर्सनल लेवल पे जानना था. तो वो तो कॉल बुक करके तो होगा ना, बिना बात करे तो होगा नहीं. तो on that call she explained everything, and then she explained to me the startup packages that we have, कि कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कितना आपका कॉस्ट लगेगा. बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट तो जाएगा ही जाएगा. तो मेरे को वो अच्छा लगा कि they gave me the freedom to choose. उन्होंने ऑप्शन तो दे दिया मेरे को कि ये ऑप्शन है, ऐसा ऐसा आपका कॉस्ट रहेगा, अब आप चूज करो कि आपको क्या सही लगता है, क्या आपके बजट में आता है, विल गेट यू स्टार्टेड. तो वो मेरे को एक चीज अच्छा लगा कि कोई प्रेशर नहीं था उस कॉल पे टू सेल. वो कॉल वाज डिजाइन्ड इन अ वे टू हेल्प मी. मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे बजट में जो है, एंड देन दे एक्सप्लेन कि अच्छा आपके बजट में ये है, सही है, विल गो विद इट, ये ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस का बेनिफिट ये है, ऐसा वैसा उन्होंने सारा कुछ मेरे को एक्सप्लेन किया. तो even though she did not sell me anything at that moment, but I was sold. Simply because the pressure wasn't there. And I went away on that call. After that call, मेरे को लगा कि if they don't pressure us to invest and buy into anything, it's just a call to explain what the business is, what the cost looks like, आपको business में क्या करना है, training कैसे काम करता है, and everything.
that was the most important thing that got me started in the business. And then training का तो क्या है, training is training, you know, जैसे ऐसे मुझे लगा कि मैं वापस back to school जा रही हूँ because you know you're learning something new. पर Yeah. अपने flexible time में 24 hours training available था, तो nothing much was there for me to say कि वहाँ पे कुछ struggle था. Basically अपना time देना था, consistent रहना था ना. But the main Right. thing that helped me was that coaching call, because उसमें मुझे Right. लगा So coaching call आपने बताया. Right. तो हम्म, आपकी जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया आपको, was there any fee for that? Did she ask you for any upfront charges or anything? Or is that yeah. like Mhm. any registration fee or anything? या करेक्ट रजिस्ट्रेशन फी तो था, फ्री तो कुछ नहीं आता आजकल यू नो अगर हमें कोई कुछ फ्री दे भी रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो आएगा रिटर्न में, यू नो. तो फ्री तो नहीं था, पर हाँ इंफॉर्मेशन इनिशियल फ्री था, यू नो, वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करके वॉच द फ्री वीडियो, वो तो फ्री था. उनसे रीच आउट करके क्वेश्चंस पूछना, वो भी फ्री था. पर अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है, वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, स्ट्रेटजीज आपको चाहिए, वो उसके लिए यू हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन. तो 149 यूएसडी का था रजिस्ट्रेशन, दैट्स व्हाट आई पेड. उसमें बेनिफिट क्या था मेरे को कि 30 डेज रिफंडेबल था. गुरप्रीत, रीटा, ये तब भी 149 था और आज भी 149 है, कोई चेंजेस ही नहीं आई है ना? हाँ, ये सारे लोग पूछते हैं, सरप्राइजिंगली. you know, हाँ. कि I'll give a very good answer to that question. But getting back to Gurpreet's question, कि हाँ मैंने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन, 30 डेज का रिफंड पॉलिसी था, जो मैंने दिया ही नहीं रिफंड. अब अगर रिफंड ले लेता तो आज यहाँ होती नहीं ना. पर दैट वाज द स्टेप, यू नो. तो अगर जो लोग सुन रहे हैं उनको लगता है कि अरे रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा तो गया मेरा पैसा, ये बात नहीं है. अगर आप पे करते हो तो आपको सारा कुछ मिलेगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली आपको बताया जाएगा क्या है. वो रजिस्ट्रेशन का क्या है ना कि वी नो कि आप सीरियस हो, तो विल इन्वेस्ट आवर टाइम इन यू, विल शो यू आवर बिजनेस मॉडल, ट्रेनिंग, स्ट्रेटजी, सब कुछ. उसके बाद आपको लगता है नहीं मेरे लिए नहीं है, तो आप 30 डेज का रिफंड ले सकते हो, यू नो. नाउ गोइंग बैक टू परमजीत, आपका क्वेश्चन है कि अभी भी क्यों 149 है. इट्स अ गुड थिंग बिकॉज we all know inflation, prices, everything's going up every day, right? Yeah. But hamara registration fee, why is it still 149? But I'll be honest, it started with 99 US dollars. वो था. तो Maybe 10 years ago. हाँ वो था जब स्टार्ट हुआ. पर why did they increase the fee to 149 USD was because जो systems हम use करते हैं, technology, software, the assistants, everything जो हम provide करते हैं, we added a lot of new things. तो उसके लिए उसका प्राइस ऊपर गया. Now अब प्राइस consistent क्यों है, वो इसलिए और दूसरी बात ये है कि ये मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है. ऐसा भी नहीं है कि आप एवरी मंथ पे कर रहे हो, एक टाइम पे किया, मैंने 5 years पहले किया, दैट्स इट. पर क्यों नहीं है, क्यों हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं और क्यों मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो इसलिए कि, और ऐसा भी नहीं है कि 149 आपने एक बार पे किया वही है. एक बिजनेस आप ऑनलाइन जब बिल्ड करते हो, सिस्टम्स, ऑटोमेशंस, ईमेल मार्केटिंग, वो सारा सॉफ्टवेयर, पीपल को हायर करना, जो वेबसाइट बिल्ड करते हैं, दैट इज नॉट फ्री. इट कॉस्ट thousands of dollars a month to run. पर बेनिफिट क्या है कि हमारा जो वी वर्क एज अ बिजनेस कम्युनिटी, वी डू कॉस्ट शेयरिंग. तो every single month people are paying this registration fee, जो enough है to handle the system, the cost side of it. तो यही एक रीजन है कि हम मंथली सब्सक्रिप्शन में चार्ज कर रहे हैं और वो सिस्टम कॉस्ट अभी भी सेम है. वो शायद 2-3 साल में ऊपर जाएगा, इट डिपेंड्स, यू नेवर नो, राइट. पर द थिंग इज कि
we as a business community we share the cost. तो अभी तक तो यही है कि आपने एक बार पे किया, आपका पार्ट हो गया डन, आप अपने बिजनेस में फोकस करो. बट अगर आगे कुछ चेंज हुआ तो विल लेट पीपल नो ना. बट 149 यूएसडी रजिस्ट्रेशन अगर आप देखो उसमें आपको कितना इंफॉर्मेशन मिल जाता है ना. बट अगर आप बिजनेस ओनर बनते हो तो 149 यूएसडी में आप कभी ऐसा सिस्टम नहीं बाय कर सकते. It will cost you easily, you know, $2, $3, $4, $5,000 a month just to hold this system together, the one we have. Very true. Yeah. So yay. Yeah, we when we started clinic, for that we paid 7,000 plus we hired staff also, like we were paying from pockets, which is we are not doing anything in this business because we are not stocking things, we are not buying things every month, we are not hiring anyone for it, we don't need any office, we don't need any software, everything is provided. And community which is helping. Usually in traditional business people are jealous of giving information. They don't give information about their business, but this is the only business I have seen in my life where they share everything. Whatever Rita knows, she will tell us. So we are so blessed. We have leaders in community like her who are all the time available to give answer to our questions. So there are many people who already paid, like बहुत लोगों ने जैसे पे भी किया होता है और फिर सारा इंफॉर्मेशन ले भी लेते हैं, फिर उनको थोड़ा सा एक डाउट और हो जाता है कि क्या करना है, हमें बाद में क्या करना है. इन्वेस्टमेंट पे भी बोलते हैं चलो हम कर लेंगे पैकेज सिलेक्ट, फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको कैसे डिसीजन के लिए हम रेडी कर सकते हैं? हाँ, जो तो आपका जो क्वेश्चन है कि जो लोग इन्वेस्ट करके पैकेज लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना उनको, ये बहुत थोड़ा कॉमन सा सिचुएशन होता है. आई हैव 3 पीपल इन माय टीम एज वेल. तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, इट्स ट्रांसपेरेंसी ही है. हम कुछ हाइड नहीं कर रहे. कुछ लोग होते हैं कि आते हैं हमारी तरह, इवन दो स्ट्रगल है, they'll fight, they'll move forward. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलता है एंड दे गेट ओवरवेल्म्ड और उनको लगता है कि अरे बाप रे क्या हो गया, आई डोंट थिंक आई वांट टू गेट इनटू दिस. तो ऐसा नहीं है कि जो जर्नी है पीपल का डिफरेंट रहता है, बट हाउ यू टेक इट दैट डिसाइड्स ना. तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक ओपन माइंड से आना चाहिए. एक्सपेक्टेशन तो रहेगा, जब आप पैसा लगा के कुछ स्टार्ट करते हो तो एक्सपेक्टेशन तो रहेगा ना. पर एक गुड एग्जांपल मैं देती हूँ कि पीपल, जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, आप स्कूल्स जाते हो, एजुकेशन सिस्टम है, हमारे हर किसी के पास आज कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन तो है ना. तो आप उसको गो बैक एंड थिंक अबाउट इट कि आपने जब डिसाइड किया और मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, नर्स बनना है, ये वो, तो क्या आप पैसा देते ही बन गए या आपको 3-4 साल आपने दिया, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, आपने सीखा, फिर जाके आपने ग्रेजुएशन लिया, फिर वो एक प्रोसेस आता है कि आपको अब जाके अपना रेज्यूमेस डालना है, आपको जॉब इंटरव्यूज पे जाना है, सिलेक्ट होना है, फिर आपको प्रूव करना है कि आपको आता है काम, ये वो, आपको वो एक पीरियड रहता है ना कि व्हेन दे लुक एट योर वर्क, आप सही हो कंपनी के लिए कि नहीं, एंड वगैरह वगैरह, एंड देन दे मेक यू परमानेंट एंड ऑल दैट सिचुएशन. तो जब जॉब, आप एक एजुकेशन से अपना जॉब का जर्नी इतना साल में निकालते हो, तो बिजनेस में क्यों लोगों को लगता है कि आज स्टार्ट किया, टुमारो आई एम गोना बी सक्सेसफुल, इजी रहेगा ना. तो यही एग्जांपल मैं खुद अपनी टीम को देती हूँ व्हेन आई मेंटर एंड कोच देम कि डोंट एक्सपेक्ट ओवरनाइट रिजल्ट, डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी इजी, हैव एन ओपन माइंड और लर्निंग पे फोकस करो. लर्निंग आप जितना सीखोगे उतना पैसा आप इस बिजनेस में बना सकते हो. दैट इज व्हाट आई टेल. अगर आप सीखते नहीं हो, आपको पता नहीं है कैसे होगा, क्या करना है, एंड यू मिसिंग आउट ऑन द पोटेंशियल,
तो यही है कि इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग. 2 ही चीज में यहाँ इन्वेस्ट करना होता है. एक तो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट जो लगेगा आपको, अपना पैकेज सिलेक्ट करना है, इन्वेस्ट करना है. दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको इन्वेस्ट करना है इज इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग. उसी से आपको सब कुछ आगे इजी होता जाएगा. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने कोच है, मेंटर है, उनसे पूछो, उनसे सलाह लो, उनसे डिस्कशन लो, and invest time. That's the only thing that will help people succeed. Thank you, Rita. That was very genuine answer. सेम जैसे हम किसी भी बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिशनल में भी, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है. ये नहीं कि फर्स्ट ईयर आपने लगाए पैसे, और जो ट्रेडिशनल है उसमें भी वो कहते हैं थर्ड ईयर में जाके कमाई के बारे में सोचो कि तुम्हें उसके ज्यादा मनी जो आनी शुरू होती है. इट टेक्स 1 to 3 years. तो सेम ही है, हर बिजनेस में ऐसा ही है. करने वाले पे भी डिपेंड करता है वो कितनी एफर्ट्स डाल रहा है, कितना लर्न करके वो उसको अप्लाई कर रहा है एजुकेशन को, एंड रिसोर्सेज ढूंढ के कैसे काम कर रहा है. मेंटरशिप तो है, कोचिंग है, कम्युनिटी की हेल्प है. ये बंदे पे भी डिपेंड करता है कि उसका माइंडसेट क्या है. कुछ लोग हैं वो बैठ जाते हैं, कुछ लोग हैं कि वो कंटिन्यूअस स्ट्रगल करते हैं कि नहीं मुझे इसका आंसर चाहिए, तो नेचुरली दे विल सक्सीड इन देयर लाइफ. सो गुरप्रीत, क्लोजिंग कमेंट्स, आप कुछ कहना चाहते हैं? I was actually going to say कि I am still a full-time employee. So I still do it. तो मैं अपना कहीं भी pockets of time during the day, जहाँ भी मुझे कोई time मिलता है, during commute, because a part of my commute is on the transit. So I just do, like, sometimes I reply to emails and things like that. Or I do my training in my breaks sometimes. So, so training is an ongoing thing, which is excellent इस business में. ट्रेनिंग को कॉन्स्टेंटली जो अपडेट करते रहते हैं, उसमें उससे जो नई नई चीजें जो है हमें पता चलती रहती है ना, उसके लिए मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता, राइट. ये नहीं है कि कॉन्स्टेंटली मैं कोई सब्सक्रिप्शन पे कर रही हूँ अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए. there's none of that, which is amazing. So yes, efforts are required, but in comparison to traditional business, it's way less, I would say. And considering all the support, all the training and mentorship, jo ongoing hai, lifelong mentorship, you don't get those things from anywhere. So in the end, I would say that this has been a very, very inspirational session, and thank you for all your valuable thoughts and your experiences, the sharing your journey and everything. We are grateful for it, and I'm sure जो भी हमारी इंटरव्यू अभी देख रहे हैं और बाद में वॉच करेंगे, उनको इसमें से बहुत valuable tips मिलेंगे, and they'll be inspired, and we will look forward to having them as a future business partners. So thank you very much again, Rita, and we wish you all the very best. And we look forward to seeing you in person one day. Thank you so much. I think I met Paramjeet already, but Gurpreet, I think we live so close by. We should get together for a coffee or something. Of course, absolutely. You know, that's the beauty of this business, that it's all online, it's digital. We call this session coffee and chat with Entrepreneur, just because you can have chat, coffee, breakfast, whatever, and you're still working, right? But again, in person is always helpful as well. So once again, thank you very much for your time and for being our guest today. Have a great week ahead and enjoy your weekend. Thanks again. Thank you. Have a good day, everyone. Take care. Thanks for watching.